Okay. Now Young's double slit experiment. We know that for stationary interference, coherent sources are required, and it is difficult to obtain coherent sources in case of light. Young discovered the method by which we can obtain coherent sources in case of light. Okay. He obtained he obtained coherent sources by division of wavefront. Okay, consider these three screens: screen 1, screen 2, screen 3. Screen 1 and screen 2 are very close, whereas screen 3 is almost at distance 1 meter from screen 2. Mirror, he made one slit on screen 1, that is S. He made two slits S1 S2 on screen 2. Now the distance of S1 from S and distance of S2 from S are equal. Okay. Now here there is a monochromatic source of light. So between the region screen 1 and screen 2, whatever light is there is due to slit S. So for this region, slit S is the source. It is linear source, and because it is linear source, it produces cylindrical wavefront. Now distance of slit S1 and slit S2 from slit S are equal, so definitely at every instant same wavefront will incident on both slits. Now according to definition of wavefront, if the same wavefront incident, then phase of S1 and phase of S2 are equal. Now because phase of source S1 and S2 are equal, so they are coherent sources. Okay. Now for region between slit screen 2 and screen 3, S1 and S2 are the sources. They are coherent sources. Okay. And you will find interference between these waves from S1 and S2. As a result of interference on third screen, you will find bright and dark lines. These bright and dark lines are called fringes. Okay, so due to stationary interference, we get on third uh, screen bright and dark fringes. It is the result of stationary interference. Okay. In his historical experiment, instead of using pinholes, Young used instead of using slits, he used pinholes, and instead of using monochromatic light source, he used sunlight. So in this way, by the method of division of wavefront, where he found two coherent sources. Okay, and in this way we can produce stationary interference in case of light. Now derive the formula of path difference x small d upon capital D. मेरा ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही मेरा पार्ट है. ये स्क्रीन 2 है मेरा, एंड स्क्रीन 3 जहाँ पर आपको फ्रिंजेस मिलती है. स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, जो 1 मीटर रेंज का होता है. अब सपोज ये जो पॉइंट है पी पॉइंट पर मुझे पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, बराबर. तो सपोज
here we have to find path difference at point P on screen. Right. Now listen. Suppose ये मैं A1 ले रहा हूँ और ये मैं A2 ले रहा हूँ. तो फॉर ट्राइंगल S1A1P, तो इसमें S1P आपका हाइपोटेनस होगा. तो S1P स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है x माइनस डी बाई टू. तो x माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर. तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4 डी स्क्वायर बराबर. सिमिलरली अब ये वाला ट्रायंगल लो S2PA2, S2PA2 बराबर S2A2P. अब आपका हाइपोटेनस है S2P स्क्वायर. इट इज x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर प्लस डी बाई टू बराबर. ये जो साइड है P से लेकर A2, ये आपकी x प्लस डी बाई टू है और ये कैपिटल D. तो x स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस कैपिटल D स्क्वायर. तो हमें तो पाथ डिफरेंस चाहिए, इसलिए S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस कैपिटल D स्क्वायर माइनस, अब माइनस करोगे तो सारी साइन चेंज हो जाएगी. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर कैंसल, डी स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर. अब इसके फैक्टर्स करोगे तो S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P is 2xd. So therefore S2P minus S1P 2xd upon S2P plus S1P. अब ये जो डिस्टेंस है, लिसन, ये मीटर में है और ये मिलीमीटर में है, तो ये बहुत कम है बराबर. तो S1P बराबर ऑलमोस्ट आप S1P और S2P को D ले सकते हो, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बराबर. तो S1P ऑलमोस्ट इक्वल टू S2P ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल D. सो S2P माइनस S1P 2xd अपन कैपिटल D प्लस कैपिटल D बराबर. सो देयरफॉर S2P minus S1P is x small d by capital D. तो ये तो पाथ डिफरेंस है. तो पाथ डिफरेंस इज x small d by capital D बराबर. तो अगर आपको स्क्रीन पर, थर्ड स्क्रीन पर ये जो पॉइंट A है उससे डिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप इस फॉर्मूला से पाथ डिफरेंस फाइंड कर सकते हो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देख लो, नोट्स बना दो, पॉज करके रीड कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस एंड टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस आर इक्वल. तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट है. ये स्क्रीन 2 पर स्लिट S1 S2 और ये थर्ड स्क्रीन है. सपोज Pn पर मुझे n ब्राइट फ्रिंज मिल रही है और Pn प्लस 1 पॉइंट पर n प्लस 1 ब्राइट फ्रिंज मिल रही है. तो इससे मुझे n ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मिलेगा, n प्लस 1 ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मिलेगा, उनका सब्ट्रैक्शन करूंगा तो इट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस.
बराबर। तो फॉर n bright fringe, path difference x के फॉर्म में xn स्मॉल d अपन कैपिटल D और लैम्डा के फॉर्म में n लैम्डा। आपको पता है n लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। नाउ xn is n lambda capital D upon small d. Similarly, for n plus 1 bright fringe, अगर मैं n plus 1 ब्राइट फ्रिंज ले रहा हूं तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, xn plus 1 small d by capital D n plus 1 lambda. So xn plus 1 is n plus 1 lambda capital D upon small d. So therefore distance between two successive bright fringes is xn plus 1 minus xn. So n plus 1 lambda capital D upon small d minus n lambda capital D upon small d. तो n lambda capital D upon small d, lambda capital D upon small d minus n lambda, तो ये कट, तो इट इज lambda capital D upon small d रिजल्ट 1। इसी तरह से फॉर nth डार्क फ्रिंज पाथ डिफरेंस x के फॉर्म में xn स्मॉल d बाय कैपिटल D। अब डार्क यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो 2n minus 1 lambda by 2. So your xn 2n minus 1 lambda capital D upon 2d। बराबर इसी तरह से फॉर n plus 1 डार्क फ्रिंज, आपका पाथ डिफरेंस x n plus 1 स्मॉल d बाय कैपिटल D। अब लिसन 2 n plus 1 minus 1, तो आपका ऑर्डर अब n plus 1 है, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2n plus 2 minus 1 वही 2n plus 1 हो जाएगा। So therefore xn plus 1 is 2n plus 1 lambda capital D upon 2d. So therefore distance between two dark fringes xn plus 1 minus xn, तो 2n plus 1 lambda capital D upon 2d minus 2n minus 1 lambda capital D upon 2d। तो ये lambda capital D upon 2d कॉमन, 2n plus 1 minus 2n plus 1, 2n 2n cancel, 1 plus 1 2, 2 2 cancel,
लैम्बडा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी, ये आपका रिजल्ट 2। तो देयरफॉर डिस्टेंस between two bright fringes is equal to distance between two dark fringes, उसे x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड width of the fringe, whether it is bright or dark. Now intensity versus x, that is the distance on screen from the perpendicular bisector point A, या फिर थीटा, बराबर ये एंगुलर पोजीशन है। तो we know that intensity is I naught cos square phi by 2, बराबर। अब सपोज जो पॉइंट है वो डिस्टेंस x है, तो उसे आप 2 पाई बाय लैम्बडा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाथ डिफरेंस जो है वो फेस डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। तो इस तरह से मुझे बराबर ये फॉर्मूला मिलेगी I वर्सेस x। तो इसके हिसाब से अगर मैं I वर्सेस x का प्लॉट ड्रॉ करूं तो मुझे इस तरह से मिलेगा, बराबर। इसमें आप नोट कर सकते हो, यहाँ जहां आपका x 0 है तो ये यहाँ आपको 0th ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, बराबर। यहाँ पर और यहाँ पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल रही है। फिर ये पोजीशन और ये पोजीशन पर फर्स्ट ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज, बराबर, फर्स्ट ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट में ऑर्डर 0 से स्टार्ट होता है और डार्क में 1 से, बराबर। यहाँ सेकेंड ऑर्डर ब्राइट, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट, ठीक है। अब यहां से एक चीज क्लियर है कि सारी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम है, बराबर। और विड्थ आप देख लो, कोई भी ब्राइट फ्रिंज लो या डार्क फ्रिंज लो, उसकी विड्थ भी सेम है। तो ये हम इस I वर्सेस थीटा या I वर्सेस x के प्लॉट से कंक्लूड कर सकते हैं, बराबर।